Hi everyone, welcome to the channel of KVTEACHERSGUIDE by NCERT. Today in this video we are going to study Class 4 EVS looking around chapter 19. Name of the chapter is Abdul in the Garden. Today in this video we are going to study the entire printable ready-made solution of worksheet published by NCERT. Class 4 EVS name of the chapter is Abdul in the Garden. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request you please subscribe the channel, click the bell icon, इसको like कर दीजिए, share कर दीजिए, so instant पे से notification will reach you whenever we upload the new videos for you. Because each and every day we are uploading new videos of different chapters, different subjects. Today we are going to study the chapter Abdul in the Garden. Let's start. Number 1. Select the best option. What vegetables did Abu have to send home? कौन सा वेजिटेबल था जो अब्बू घर में भेजा था? तो कैरेट होगा, बैनियन होगा, रेडिश होगा, पी होगा. कौन सा का करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर विल बी रेडिश. यस, इट विल बी रेडिश. नेक्स्ट, सीड्स रिक्वायर डैश टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड स्टीम. सीड्स रिक्वायर्ड, सीड्स को क्या चाहिए? एयर, वाटर, सनलाइट, ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर भी ऑल ऑफ दीज. सीड्स जब जर्मिनेट करता है इसके लिए बेसिकली हम लोग को चाहिए एयर, वाटर, सनलाइट. तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी में. नंबर 3. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स दैट वी ईट आर एक्चुअली रूट ऑफ द प्लांट्स. जो वेजिटेबल्स होगा, कुछ वेजिटेबल्स होता है जिसका हम लोग रूट्स बेसिकली, प्लांट्स का रूट बेसिकली हम लोग खा लेता है. कौन सा, क्या नाम होगा? पोटैटो, पी और टोमेटो. इट्स नन ऑफ दीज. कुछ भी ये पे कोई भी नहीं होगा. डी, नन ऑफ दीज. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. जो ग्रो नहीं करते हैं, कौन सा वाला होगा? लीव, मॉस्किटो, ऑल ऑफ दीज. इट विल बी द मून. सी, द मून इज द मून बेसिकली थिंग्स which does not grow. ठीक है. In the Australian desert, when there was no water, the local people got water from the dash of the desert quick tree. ओक ट्री, डिजर्ट ओक ट्री. क्या कौन सा वाला होगा? ए ट्रंक होगा. क्विक दिए पे ओक होगा. ठीक है. ट्रंक ऑफ द डेजर्ट ओक ट्री. ओक ट्री से, ट्रंक से पानी ये पे पीता है. Where was Abdul helping his Abu? Where was Abdul helping his Abu? अबू का कहाँ हेल्प करता है? It will be in the garden. Name of the chapter Abdul in the garden. तो अब्दुल बेसिकली हेल्पिंग हिज अबू इन द गार्डन. ये आंसर होगा करेक्ट. Next, how are the roots of the grass? It will be strong and deep. It will be strong and deep. A. The pea plant is a climber. It will be climber. Number 9. Radish is a root. Radish is a root. Radish क्या होगा? Radish basically is a root. Now, from where do the leaves of the plants get water? कहाँ से plants को, प्लांट का जो लीव्स होता है कहाँ से पानी मिलता है? तो करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स. ये जो रूट्स होता है वो सॉइल से, मिट्टी से बेसिकली पानी लाता है, एंड दैट्स व्हाई द प्लांट इज लिविंग. नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स. ये ट्रू फॉल्स करना है बिकॉज इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर एग्जामिनेशन. इट शुड कम इन योर एग्जामिनेशंस. ठीक है बच्चों. तो ये ट्रू फॉल्स जो होगा ये आपको ठीक तरह से गो थ्रू करके रखना है. ठीक है. Now, desert oak tree is found in the Indian desert. It will be false. इंडिया में नहीं मिलता है. Cabbage is a root. ये भी false है. Radish and carrot are roots that we eat. Yes, absolutely true. Radish and carrot basically roots होता है that we eat, जो हम लोग खाते हैं. Roots help a tree to grow. Roots क्या करते हैं? ट्री को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. ट्रू होगा. The pea plant has a delicate stem. pea plant का delicate stem होता है. ट्रू होगा. The roots of the grass are weak and short. It will be false. It will be false. Leaves of a plant get water from the soil through root and stem. It will be true. Now fill in the blanks. Question number 3. यहाँ पे कुछ blanks दिया है, तो आपको जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से प्रॉपर आंसर है आपके लिख के फिल करना होगा. Now first one. Dash was helping dash in the garden. It will be Abdul was helping Abu in the garden. Next, the hanging branches of the banyan tree provide dash to support. It will be support to the tree. Provide support to the tree. Next, Abdul could not pull out the grass plant easily because roots are much more spread out than the part of the plant above the ground. Abdul could not
पुल आउट द ग्रास को उठा नहीं पाया प्लांट इजीली सहज तरीका से, बिकॉज रूट आर मच मोर स्प्रेड आउट, बिकॉज इसका जो रूट है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, जो ऊपर में है उससे ज़्यादा स्प्रेड आउट हो, इसलिए इजिली उठा नहीं पाया. डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द नीम ट्री स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इट विल बी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. The roots of the trees go deep into the ground till they get water. Till they get water. Now, number 6. Desert oak tree is found in Australia. Spelling जरा देख लो बच्चों. AUSTRALIA. Australia. It will be Australia. Dash and dash are living things. Cat and mango tree are living things. Next, moon and furniture are non-living things. ठीक है, कैट एंड मैंगो ट्री आर लिविंग थिंग्स, मून एंड फर्नीचर आर नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ मैच ए एंड बी, ये कुछ कलम दिया जाए, कुछ पिक्चर्स दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन दिया है, जहाँ पे ठीक होगा उसको मैच करना पड़ेगा. नंबर फर्स्ट है ब्रोकन रूट. फर्स्ट इज ब्रोकन रूट. 2 नंबर देखो बच्चों, 2 नंबर होगा ट्राइंग टू पुल ग्रास आउट. ट्राइंग टू पुल ग्रास आउट. अब्दुल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रास को पुल आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. 3 नंबर पॉइंट क्या है, कैरोट का पिक्चर दिया है शायद, ए रूट, इट इज ए रूट. नेक्स्ट 4 नंबर क्या होगा, बैनियन ट्री. यहाँ पे बैनियन ट्री दिया है. नेक्स्ट 5 नंबर में दिया है पी प्लांट डैमेज्ड. पी प्लांट डैमेज्ड. 6 नंबर है नॉट ए रूट, इट विल बी नॉट ए रूट. पहले वाला होगा नॉट ए रूट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दिस गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको ब्लैंक्स फिल करना पड़ेगा. द डैश कैन ऑल्सो बी ईटन रॉ. द कैरोट कैन ऑल्सो बी ईटन रॉ, इट विल बी कैरोट. A vegetable with dash surface is a root. It will be a vegetable with rough surface is a root. The dash tree has hanging tree. It will be the banyan tree has hanging trees. The dash tree has very long roots. The desert oak tree has very long roots. So student, this type of question definitely should be coming in your examination. Be prepared for that. कुछ पिक्चर्स आपको टेक्स्ट बुक से उठा देगा एंड यू हैव टू आइदर इसको फोटो के आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, नहीं तो इसको डिस्क्रिप्शन देगा, फोटो देगा एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर द व्हिच यू हैव टू मैच और यू हैव टू गिव मी आंसर व्हिच बेसिकली द पिक्चर इट स्टैंड्स फॉर. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट हियर एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिस, you have to more practice in your home, so definitely easily you can get it out which picture stands for and you can get a good marks in your examinations. Okay, next page. Very short answer type question. Question number 6. Answer in 1 words or 1 sentence. एक word में और एक sentence में आपको आंसर करना पड़ेगा. क्या क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. Why was it difficult for Abdul to pull out a small grass plant? It's very important question. Student, जरा इसको watch करो. किस लिए पुल आउट नहीं कर पा रहा था ग्रास को. द आंसर होगा द अब्दुल डिड नॉट एबल टू पुल आउट ए स्मॉल ग्रास प्लांट बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग रूट. इट विल बी इट हैड स्ट्रॉन्ग रूट बिकॉज इट हैड स्ट्रॉन्ग रूट. पास्ट टेंस में आंसर है तो पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा, थोड़ा मिस्टेक है. इट विल बी इट हैड स्ट्रॉन्ग रूट बिकॉज इट हैड स्ट्रॉन्ग रूट्स. Does banyan tree also has roots? If yes, then where? Yes, under the ground and on the branches. Where na? On the branches. ठीक है ना बच्चों. Next question number 3. Abdul wondered whether radish was a root. Can you tell why he thought this way? Because it grows under the ground. Because it grows under the ground. Radish is a root because it grows under the ground. Okay. Next. What is the purpose of the hanging branches of a banyan tree? The purpose of hanging branches of a banyan tree is to provide support to the tree. Is to provide support to the tree. Tree का support provide करने के लिए. Now, next question number 7. Some words used in the chapter are given below in jumble form. ये कुछ jumble form में दिया है. आप जरा इसको follow करो. पहले वाला क्या होगा? ASABELTGV. इसको होगा vegetable. VEGETABLES. Vegetables. Then EEDRSTAKO, it will be desert oak. DESERTOAK, desert oak. Then होगा hanging roots. Then होगा radish. उसके बाद होगा cotton wool. COTTON, cotton, WOOL, wool. Okay बच्चों. Next short answer type question. Question number 8. Answer in 30 or 40 words. How does a desert oak tree get water from its roots? कैसे उसको
रूट्स को पानी मिलता है. इट गोज बिकॉज देयर इज वन गुड फीचर्स ऑफ द ओक ट्री दैट इट गोज डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर. जब तक यहाँ पे वाटर नहीं मिलता है, इसको जो रूट्स होता है वो अंदर तक जाता है और भी डीपली जाता है. इट्स द वन ऑफ द गुड फीचर्स ऑफ डेजर्ट ओक ट्री. ठीक है. Next, do all plants need water? Yes, they all need water. If so, then what will happen if nobody gives water to these plants? अगर पानी नहीं मिलता है, किसी को भी पानी, लिविंग थिंग्स को पानी नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पॉसिबल, दे आर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अलाइव. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ अभी क्या है. On putting water in the soil where plants are growing, on putting water in the soil where plants are growing, their dropping leaves became fresh again. How? कैसे करके उसको ठीक होता है. They get water and minerals from soil. They get water and minerals from the soil. Minerals spelling जरा देखो बच्चों, MINERALS. They get water and minerals from soil. So leaves get energy and fresh again. So leaves से लिए भी yes, leaves get energy and fresh again. पानी जब वहाँ पे मिल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको फ्रेशनेस आ जाता है. ठीक है, वो एनर्जी मिलता है तो इंस्टेंटली वो उसको एनर्जी मिलता है तो उसको फ्रेश नजर में आता है. दैट्स वाई दे आर स्प्रिंकल द वाटर इन द प्लांट्स. ठीक है ना बच्चों. तो ये जो चैप्टर्स है, जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है. Why was the different Abdul? Why was it difficult for Abdul to pull out his small grass plant? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. बेनियन ट्री का कहाँ इसको रूट्स रहता है, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. रेडिस कैन पोटैटो रूट है क्या स्टेम है, वो आपको ठीक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कुछ भी जंबल स्वाद दे देगा उसको ठीक करके लिखना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये पेज का. नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. देखो बच्चों, देयर इज ए लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज. कटिंग ये पे जो पेड़ काटने के लिए जो है, ये रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, Decomposition and Conservation of Forest Act, it's the crime, it's the law against the cutting trees. Explains this with an example from your NCERT textbook. क्या होगा देखो बच्चों. There was a tree growing close to a lamppost. There was a tree growing close to a lamppost. The tree was so full of leaves. ट्री का क्या हुआ, so full of leaves, बहुत सारे पत्ता हुआ, बहुत सारे लीव्स हुआ. That the light of the bulb was blocked. इतना सारा उसको लीव्स हो गया, जो बल्ब का जो लाइट है वो देख नहीं पा रहा है. People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. पीपल क्या सोच रहा था, अगर इसको ब्रांच को थोड़ा ट्रिम करे, इसको काट करके थोड़ा छोटा कर दे तो डेफिनेटली उसको लाइट आ जाएगा, तो लाइट देख सकता है. बिफोर दे डू दिस, उसको करने से पहले दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस. ये करने से पहले उसको गवर्नमेंट ऑफिस से उसको परमिशन लेना पड़ता है, 8 डिफरेंट पोर्शन लेना पड़ता है. तो दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कटिंग ट्रीज. ठीक है, जहाँ पे सपोज क्या बोलना चाहता है, जो कहाँ पे एक तो बल्ब लगा हुआ है लाइट पोस्ट के साइड में, इतना से बड़ा पेड़ हो गया, उसको लीव से उसको बल्ब का लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए उसको परमिशन दे के उसको कट के ट्रिम करना है, ट्रिम करना है. ठीक है, परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिस को. नाउ द शेप ऑफ द मून लुक्स डिफरेंट इन एवरी डे. व्हाई डज दिस हैपेंस? टेक हेल्प फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. आंसर होगा, द फेज ऑफ द मून डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशंस रिलेटिव टू द सन एंड अर्थ. फेज ऑफ द मून डिपेंड्स करता है ऑन इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन के ऊपर, रिलेटिव टू दी सन एंड अर्थ के पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है इसको फेज. इट चेंजेस व्हेन द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. इट चेंजेस इस इसका शेप चेंज होता है व्हेन द मून रिवॉल्व, जब ये मून रिवॉल्व करता है, घूमता है अराउंड अर्थ के साइड में. डिफरेंट पोर्शन ऑफ द मून सनलाइट सरफेस आर विजिबल फ्रॉम अर्थ. जब अर्थ से उसको देखा जाता है तो डिफरेंट जगह में डिफरेंट शेप होता है. दस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्थ शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी डे. ये जो जब घूमता है अर्थ के साइड में जो रिवॉल्व करता है, इसको डिफरेंट जगह से इसको साइज शेप डिफरेंट दिखता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू अ वेरी ओल्ड ट्रीज व्हेन दे डाई. जब वेरी ओल्ड ट्री जब डाई हो जाता है तो क्या होता है? द प्राइमरी डिकम्पोजर, आप गूगल करके देख सकते हो प्राइमरी डिकम्पोजर किसको बोलता है. ठीक है ना बच्चों, डिकम्पोजर का स्पेलिंग दे रहा हूँ, DECOMPOSERS. द प्राइमरी डिकम्पोजर्स ऑफ द मोस्ट डेड प्लांट मटेरियल्स आर फंगी. डेड लीव्स अच्छा, डू दे फॉल डाउन और डू दे ड्राई अप? डेड लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज एंड herbaceous plants
कोलैप्स टू द ग्राउंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड्स। ये थोड़ा आप गो थ्रू करके रखो, ठीक है। डेड लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज एंड हार्बेसियस प्लांट्स कोलैप्स टू द ग्राउंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट you must have seen plants growing from a crack in a wall. How deep must their roots be growing? How do you think its root get water? Too much depth, that is difficult to pull out by bare hand. ठीक है, खाली हाथों में उसको उठाना डिफिकल्ट हो जाता है। दोज प्लांट्स आर मेनली पैरासाइटिक, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। इसको ये बेसिकली कौन सा कैटेगरी का प्लांट्स होता है? पैरासाइटिक, then creepers and climbers. Need less water, it get water from rain and earth different portion of the, ठीक है। ये मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वही से वो पानी लेके वो बड़ा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? क्या होगा? लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं? ब्रीथ करता है, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग थिंग्स इज जस्ट ऑपोजिट होता है। इसको ऐसा कुछ करने के लिए स्वाभाविक सिचुएशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जैसे कि डेजर्ट, ओक, ट्रीज, रूट, सॉइल, फोटोसिंथेसिस, बेनियन, ऐसे जो वर्ड्स दिया है आपको सही जगह में पुट ऑन करना है। नंबर 1, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ द रूट्स, ठीक है। सॉइल से एंड रूट्स से पानी निकल के वो लिविंग रहता है। ए बेनियन ट्री हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, इट विल बी बेनियन ट्री। ए ओक ट्री, ठीक है, स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक में स्टोर करके रखता है। देन फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक साइंटिफिक नेम है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट्स प्रिपेयरिंग देयर फूड्स। Human being, animals and birds cannot survive on earth without trees. It will be without trees. ठीक है ना बच्चों? Now, give 3 example of edible parts of a plant. कौन सा वाला edible parts है? और तीन edible parts of a plant. कुछ parts है जो तीन करके example दे दो। जैसे कि flower edible होता है, जिन्हें कचनार, सहजन, हाँ, बनाना, ये फ्लावर हम लोग खा लेता है। कचनार, सहजन एंड बनाना। आप पिछले क्लास में भी आप पढ़ा हो, एक क्लास में भी शायद आपको है अभी, ठीक है। सीड्स कौन कौन हम लोग खा लेते हैं? देन पीज, सनफ्लावर, पम्पकिन, लीव्स, स्पिनच, लेटूस, कैबेज। देन आपको हो गया रूट्स, कैरोट, ऑनियन, गार्लिक, टर्निप, ये रूट्स हम लोग खा लेते हैं। स्टेम, पोटैटो, टर्मरिक, ठीक है। दीज आर द बेसिकली पार्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीज आर द रिमेंबर कौन सा फ्लावर, सीड्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स हम लोग खाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। ये थोड़ा रेडी करके रखना है, गो थ्रू करके रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्व एट लीस्ट 5 प्लांट्स इन योर गार्डन पार्क, राइट देयर नेम्स एंड फीचर इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको कुछ 5 दो प्लांट्स है आपको गार्डन में है, तो ही डिफरेंट जगह में आपको लिखना पड़ेगा। उसका फीचर्स, टाइप, ट्रैंक क्या हो सकता है वो आपको लिखना पड़ेगा। यू कैन डू योरसेल्फ, आई थिंक दैट आप ये कर लोगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग फूड मटेरियल विद द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। कुछ हम लोग यहाँ पे फूड मटेरियल्स एंड प्लांट्स पार्ट्स के बारे में बताएंगे। एक कौन सा क्या होगा मैच करना पड़ेगा। जैसे कि कैरोट क्या होता है? कैरोट इज बेसिकली रूट, पोटैटो क्या होता है? पोटैटो इज बेसिकली स्टेम, पोटैटो इज ए बेसिकली स्टेम। स्पिनच क्या होता है? स्पिनच इज ए लीफ, बनाना क्या होता है? बनाना इज ए फ्रूट्स, कचनार होता है फ्लावर, पाल्स होता है सीड्स, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। लेवल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। बच्चों देखो यहाँ पे कुछ भी आपको, ये तो ईवीएस सब्जेक्ट है, सो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली विल कम टू योर एग्जाम। कुछ प्लांट्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको पार्ट्स लिखना पड़ेगा। देयर आर मेनली 5 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। क्या? फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट्स है इज वेरी बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि राइट साइड में नाम लिखा है, लेफ्ट साइड में पिक्चर है, ऐसे करके आप बॉक्स करके बना सकते हो। ऐसा 2 साइड में आप मत लिखो, कोई भी एक साइड में आप नंबरिंग करके लिख सकते हो। एंड इट लुक्स वेरी नाइस, जहाँ पे आपको टीचर प्लीज डो के आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द ट्री। ये कौन सा ट्री है? इट इज बेनियन ट्री। अब देखो बच्चों, ये बेनियन ट्री है, ये पर ब्रांचेस वगैरह आ गया, इधर झूला झूली कलर सब
बच्चों के ये पे पिक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिखना, सो डेफिनेटली यू कैन गेट ऑन गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ईवीएस जब एग्जाम में होगा तो उस टाइम पे आप कलर पेंसिल लेके जाइएगा, जहाँ पे आपको ड्रॉ करने के लिए कुछ पिक्चर्स दे सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट्स। टाइप ऑफ रूट्स पे क्या है, ब्रांचेस है। ये पे क्या दिखाया, ये ब्रांचेस दिखाया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जरा फॉलो करो, गो थ्रू करके रखिएगा। नेक्स्ट पेज में क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिफाई दिस वेजिटेबल व्हिच आर रूट्स स्टोरिंग फूड। व्हिच आर रूट स्टोरिंग फूड, जो रूट होता है, रूट के अंदर फूड स्टोरिंग करके रखता है। क्या क्या पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट होगा रेडिश, पिक्चर दिया है किसका, रेडिश है, रेडिश इज ऑल्सो इन रूट, रेडिश है। देन टर्निप का पिक्चर दिया है, टर्निप है। देन कैरोट है, देन सलगम है, सलगम SHALGM सलगम, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया अब हम लोग देखेंगे। ड्रॉ स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीड्स का जर्मिनेशन होता है, उसको स्टेज होता है, कौन सा स्टेज में क्या प्रोसेस है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप ये जरूर गो थ्रू करके रखिएगा, यू कैन गिव गुड आंसर। फर्स्ट ऑन स्टेज 1 इम्बिबिशन क्या मतलब होता है, वाटर फिल्स द सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी में सीड्स को इम्बिशन करके रखना पड़ता है। स्टेज 2 द वाटर एक्टिविटीज एंजाइम्स दैट बिगिन इन द प्लांट्स ग्रो। द वाटर एक्टिविटीज, जो वाटर का एक्टिविटीज होता है तो वहाँ से सीड्स एंजाइम होता है एंड द बिगिन्स टू प्लांट्स ग्रो, ठीक है। स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में जब आएंगे वहाँ पे होगा सीड ग्रोज ए रूट टू एक्सेस वाटर अंडरग्राउंड। सीड्स ग्रोज ए रूट टू एक्सेस वाटर अंडरग्राउंड। देखो बच्चों, यहाँ पे धीरे धीरे सीड्स का जो रूट होगा, वो रूट होता है वो अंडरग्राउंड में जा रहा है। स्टेज 4 में क्या होगा, सीड ग्रोज शूट्स दैट ग्रो टुवर्ड्स द सन ग्राउंड, टुवर्ड्स द सन। धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर का जो पेड़ होगा, ऊपर का जो ट्री होगा वो धीरे धीरे सन का तरफ ऊपर में आएगा और नीचे में स्प्राउट से धीरे धीरे रूट्स अंडरग्राउंड में जाएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट स्टेज 5 क्या है, दिस शूट्स ग्रो लीव्स। दिस शूट्स क्या होगा, शूट से धीरे धीरे उसको लीव्स ग्रो करेगा एंड बिगिन फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड बिगिन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। धीरे धीरे এটা फोटोमॉर्फोजेनेसिस जेनरेट करेगा और धीरे धीरे बड़ा होगा। तो दिस शूट्स ग्रो लीव्स एंड बिगिन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। स्पेलिंग जरा देख लो, PHOTO फोटो, MORPHO मॉर्फोजेनेसिस, GENESIS। इसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है आप गूगल करके देख सकते हो। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है ना स्टूडेंट। दिस इज द एंटायर प्रिंटेबल रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ दिस। नाउ जस्ट वन शॉर्ट ब्रीफ, ओक ट्री के बारे में आप थोड़ा गो थ्रू करके रखिएगा। अगर ये पे कोई एग्जाम में आ जाए तो आप इसको भी आंसर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो। सब्सक्राइब चैनल, क्लिक द बेल आइकन, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। इंस्टेंटली बेसिस नोटिफिकेशन will reach you whenever I upload new videos for you, because each and every day we are uploading new videos for the different chapters, different subjects, and it will be very helpful for your examination. So hopefully you will understand and you will prepare yourself. Thanks for watching. Thank you very much. We are coming in the next video session with another topics, new subjects. Thank you.